السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ. اور ہم لوگ کی ٹیم آج ضلع حافظ آباد کے علاقے موآں بھٹیا میں موجود ہیں. ناظرین، سے کچھ دن پہلے عالمی یوم خواتین منایا گیا، جہاں عورتوں کو، خواتین کو جائیداد میں حصہ ملنا اور دیگر حقوق ان کو ملنے چاہیے، وہیں انصاف بھی ان کا بنیادی حق ہے. اور یہی انصاف دلانے کے لیے ہی ہم لوگ کی ٹیم آج یہاں موجود ہے، کیونکہ یہاں دو بچیوں کو، دو خواتین کو بے دردی سے قتل کیا گیا. ان کے اپنوں نے ہی ان کی جان لی ہے. واقعہ کیا ہے، کیوں ہوا، اور ان بچیوں کو انصاف ملنے کی کس قدر امید ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے نمائندے بلال اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ابتداً جو تفصیلات ہیں اس معاملے کی وہ ان سے جانتے ہیں. دو قتل کے واقعات ہیں بلال صاحب، یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی بالکل ملک صاحب، یہ جو علاقہ ہے موآں بھٹیا کے اندر جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہاں پہ جو ہے لڑکی جو تھی اس کی عمر جو ہے تقریباً بنتی ہے 20 سے 22 سال کے درمیان. تو وہ جو ہے گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے ادھر سے چلی گئی تھی اور اس نے جو ہے نا پسند کی شادی کر لی تھی، لو میرج. تو جس کے اوپر جو ہے اس کی فیملی، اس کے گھر والے جو ہیں اس پہ خوش نہیں تھے. تو اس کے بعد پنچایتی طور کے اوپر جو ہے اس کو واپس کیا گیا اور اس سے طلاق لی گئی. اور اس کے بعد اب یہ جو ملزم شبیر ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی جو تعلق کیا ہے اس بچی کے ساتھ شبیر کا؟ شبیر جو ہے اس کا چاچو بتلایا جاتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ میں اب اس بچی کی شادی جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دوں. لیکن جو مقامی افراد بتلاتے ہیں ان کے مطابق وہ لڑکی جو تھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو جس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے فائرنگ کر کے اس کو اپنے بیٹے سے شادی و بضد کیوں تھا؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا یا بس ویسے ہی چاہتا تھا کہ جو بچی ہے وہ خاندان سے باہر نہ جائے، ہمارے گھر میں ہی رہے؟ اصل میں تو بس وہ جو برادری سسٹم ہوتا ہے وہ بھی چیز ہے، لیکن جائیداد کا اتنا زیادہ ایشو تو نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ فیملی جو ہے متوسطہ طبقہ یہ والا. تو دوسرا جو واقعہ کو جیسے کہ آپ نے بتایا بھی تھا کہ دو بچیاں قتل ہوئی اسی علاقے میں، دوسرا واقعہ کیا ہے؟ جی دوسرا واقعہ جو ہے وہ پاڑ احمد گاؤں ہے، وہ بھی تھانہ سکھی کے اندر ہی آتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے ارم شہزادی نامی بچی تھی، اس کی عمر 16-17 سال ہے. وہ جو ہے کسی گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ جو پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گئی ہے. تو گھر والوں نے جو ہے اس کو پکڑ کے تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو بھی جو ہے اسی طرح اس کے بھائی نے فائرنگ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا. دونوں واقعہ جو ہیں وہ سیم ہے، غیرت کے نام پہ جو ہے وہ قتل ہے. تو اس کے جو کارروائی ہو. اچھا، جیسے کہ دونوں ہی واقعات غیرت کے نام پر قتل ہیں اور دونوں ہی واقعات میں ایک میں قتل کرنے والا چچا ہے، سگا چچا، اور ایک میں قتل کرنے والا سگا بھائی ہے، تو جو مدعی ہیں وہ بھی اپنے ہی رشتہ دار ہیں اس کیس میں؟ جی بالکل. جی یہ بدقسمتی ہے ملک صاحب. ادھر عموماً یہ جو ہمارے علاقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ سامنے آتی ہے کہ گھر کا فرد ہی جو ہے نا ایک قتل کرنے والا ہے اور دوسرے گھر کا فرد جو ہے وہ مدعی بن جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بعد میں اس کو معاف کر دیا جائے گا اور کارروائی سے جو ہے بچ جائیں گے. اب یہ دونوں کیسوں کے اندر یہ معاملہ بھی دیکھنے میں آیا، چونکہ جب پولیس کارروائی کر رہی تھی اور ہم لوگ ادھر موجود تھے تو پولیس اس پہ کر رہی تھی کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے نا کارروائی نہیں کروانا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے، ہم پولیس کارروائی نہیں کروانا چاہتے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور ہم اس کو اسی طرح ادھر ہی جو ہے نا ختم کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن پولیس نے کافی جو ہے نا ادھر بحث مباحثے کے بعد جو ہے ان دونوں مقدمات کا اندراج کیا. ورنہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ یہ سارے معاملات اکثر و بیشتر رضامندی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ادھر ملزمان کو دیکھنے میں آیا کہ سزائیں بھی نہیں ہوتی، کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. میرا یہ سوال ہے ایسے ہی خاندانوں سے، ایسے ہی لوگوں سے، کہ اگر یہ جو قتل ہونے والے ہیں یہ بیٹی کی بجائے بیٹا ہوتا، کیا تب بھی آپ اسی طرح سے کارروائی نہ کرنا چاہتے؟ کیا تب بھی آپ یہی چاہتے کہ صلح صفائی سے معاملہ حل ہو جائے؟ تب بھی آپ یہی چاہتے کہ کوئی سزا نہ ملے ملزم کو یا قتل کرنے والوں کو؟ یہ بیٹیوں اور بیٹوں میں تفریق کیوں ہے؟ یہ تو خیر سوالات ہیں. میرا ایس ایچ او صاحب ولایت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے موقع پر پہنچ کے منظر بھی دیکھا اور اس کیس کی جو تفصیلات ہیں، جو دفعات عائد کی گئی ہیں، ساری معلومات ان سے لیں گے. ولایت صاحب، جب یہ واقعہ پیش آپ کو اطلاع ملی، آپ یہاں آئے، کیا دیکھا آپ نے؟ مجھے 15 پہ اطلاع ملی کہ موآں بھٹیا میں ایک لڑکی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. جب میں ادھر موقع پہ پہنچا ہوں تو ادھر چارپائی پڑی تھی، اس کے اوپر وہ سوئی ہوئی تھی، غالباً سوئی ہوئی کو اس کے چاچا نے فائر مارا ہے. وہ اندر سے بھاگی ہے، ادھر غالباً یہ سیڑھیاں چڑھنے کی اس نے کوشش کی ہے لیکن یہ سیڑھیاں کے سامنے گر گئی ہے. ایک فائر اس نے ادھر آ کے مارا ہے. جب میں پہنچا ہوں تو وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. فائر کس چیز سے مارا گیا، کس ہتھیار سے؟ یعنی یہ 12 بور بندوق سے مارا ہے. بعد میں جو بندوق ہے اس کے جو بٹ ہیں وہ اس کے سر میں مارتا رہا ہے. وہ جو بندوق ہمیں ملی ہے وہ پیچھے سے اس کا بٹ ٹوٹا ہوا ہے جو اس کے سر میں مارتا رہا. انتہائی شدت سے اس نے سر پہ مارا. تو یہ بتائیے گا کہ گرفتار یہ کیسے ہوا؟ آپ لوگوں نے کارروائی کی، اس کے تلاش کے لیے چھاپے مارے یا اس نے خود گرفتاری دی ہے؟ نہیں، اس کے لیے ہم نے چھاپے مارے ہیں. یہ ادھر سے بھاگ گیا تھا، موقع سے فرار تھا.
तो छापे मारे हैं। इसमें हमने बहुत सख्त एक्शन लिया है DPO साहब की हदायत पर। पहले जो था वो गैरत के नाम पे ज़िमनियों में 311 लगाते थे। हमारे DPO साहब ने हुक्म दिया है कि हमने इंसाफ दिलाना है मरने वाली को, खा वो उसके पीछे कोई भी नहीं, लेकिन हमने ज़रूर इंसाफ दिलाना है। हमने 302 के साथ 311 लगा दिया है। इन लोगों को ये था कि हम एक चचे ने कत्ल किया है, दूसरा चाचा मदई बन गया है, हम सुबह जाके बयान देंगे तो मुलजम जो है वो ज़मानत पे आ जाएगा। तो यानी आप भी अगर बयान देते भी हैं, माफ़ करते भी हैं, तो भी चूँकि फसाद फिल अर्ज़ की दफ़ा लगी है 311, तो ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। अभी क्या नहीं, अब मदई वाला मामला नहीं रहा, या कोर्ट इसका फैसला करेगी, ये मुकदमा पूरा ट्रायल होगा, इसमें पूरा इंसाफ मिलेगा मरने वाली को। सर, आप यहाँ पर चूँकि आपके सामने से बहुत से केसेस आते होंगे और बड़ी मिसालें भी होंगी, क्या रेट क्या कन्विक्शन का इस तरह के मामलात में, इस तरह के केसेस में जहाँ ख़ानदान के अंदर ही कत्ल करने वाला भी होता है, मकतूल भी होता है, मुद्दई भी ख़ानदान के अंदर है, क्या माफ़ी तलाफ़ी हो जाया करती है और केसेस ख़त्म हो जाया करते हैं आम तौर पर? पहले ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये जो जुर्म है ये बिल्कुल इसमें क्लियर कट है कि जो गैरत के नाम पे कत्ल करेगा वो उसको सज़ा मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सज़ा मिलेगी। और इधर एक और ट्रेंड बना हुआ है कि ये जो लोग हैं थोड़े से नपाड़ हैं, ये समझते हैं कि हमारी जो बच्ची है वो कमी था उसके साथ चली गई है, बिल्कुल हमने इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन एक दो केस में इंशाल्लाह हम सज़ा करवाएंगे तो ये बहुत रेट कम हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। असल में मामला गैरत का नहीं होता, असल में मामला इस चीज़ का नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से शादी क्यों करिए, बल्कि दर हकीकत इस तरह के केसेस में मामला ये होता है कि बरादरी से हट कर किसी और बरादरी के किसी नौजवान को, किसी शख्स को पसंद करने की जुर्रत कैसे की गई। तो ये वजह बनती है कत्ल की भी। ये वो छोटा सा एक मकान है, छोटा सा एक घर है, जहाँ पर कमरे के अंदर जब फायर किया गया उस बच्ची पर, उस लड़की पर, और वो जान बचाने के लिए भागी, एक फायर उसको लगा हुआ है, भागते भागते यहाँ इन सीढ़ियों पर चढ़ने की वो कोशिश करती है, लेकिन खून बहने की वजह से और गिर जाती है, और पीछे से उसका चचा, वो सगा चचा जिसके वो घर रह रही थी, वो बाप का भाई जो जिसमें बाप नज़र आता है, उस शख्स ने उसे एक और फायर मारा, सर पर बंदूक के वार किए, बट मारा, और इस कदर ज़ोर से मारा कि वो बता रहे हैं विलाज साहब, सचो साहब, कि वो टूटा हुआ है, लकड़ी का जो बट होता है बंदूक का वो टूटा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि उसके अंदर कितनी वहशत उस वक्त सवार थी। और जो मकतूला है उसकी चची और मुलजिम की अहलिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो उस दिन इस घर में मौजूद थी जब ये वाक़या पेश आया। तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है आपका? क्या ये जब वाक़या हुआ, जब फायर हुए, आपने आवाज़ सुनी? पहले दिन नहीं सुनी, दूसरे दिन सुनी। पहले फायर की आवाज़ क्यों नहीं आई आपको? आई ही नहीं, बिस्तरे तो उत्तू ही लगा है, नहीं आई। ਅਸੀਂ दूसरे दिन सुनी है, भज के उठे हैं, मार के तो निकलिया जा। क्या देखा आपने जब आप उठी? तो उठे हैं तो ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਲੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਮੇਰੇ को पूछा सारे, मैं आख्या मेरा मियाँ मार के निकलिया जाता है, नसा जाता है। उसके पास ये राइफल थी पहले से थी? जी मैं वो भी नहीं देखी। अच्छा, वो भी नहीं पहले मैं कोई असला उसके पास नहीं था? नहीं, कसम मांग नहीं देखा। हाँ जी। तो उसने कोई ऐसी बात की थी कि मैंने इसे मारना है, छोड़? हाँ, पूरा महीना आंदी ही वापस मोची नाल टुर गई सी, वापस करके आंदी सी, मैं ही पाली सी, मैं ही पढ़ाई सी, मैं ही रखी सी। मैं बेटियों की तरह आपने रखा हुआ था? जी, मैं बेटियों तरह। अम्मी तो अबू फौत हो गए सी। मैं उन्होंने पूरा महीना अद्धा पिंड सटिया है पैरां ते, कुरान भी धरे ने, कुड़ी नहीं मनदी, आंदी मोची दी पकाणियां ने। यानी वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी उस लड़के के साथ? हाँ अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੀ ਉੱਥੇ ਬਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਕੌੜੇ। अब क्या होगा जी? आप इधर आइएगा, क्या कह रही हैं आप? बच्ची फिर भागने की कोशिश की थी, तो फिर ने उस चाचे ने जज्बात च आके फिर मारा है। अच्छा, ये कह रही हैं बहन कि बच्ची ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की और इसी वजह से जो उसने मार दिया। आप क्या लगती हैं जी इसकी? इधर आइएगा बहन, इधर आइएगा। आप क्या लगती हैं इसकी मकतूला? कौन हैं आप? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस तरह से कत्ल किया है, मार दिया है, अब इनके शौहर हैं और मकतूला के चचा हैं, इंसाफ मिलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए या नहीं? भागने की कोशिश की थी ना, उस टाइम ऐसे ये नहीं सी थे, मैं मौजूद थी, ये तो उन्हें कोल थी, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर बड़े तरले मिन्नतां कीतियां ने, वरना इन्होंने फिर भी मैं नहीं दसिया भी वो मतलब फिर भी कोशिश की थी भागने की, फिर भी असीं तरले ही करते रहे, तो वरना कुड़ी नहीं सी मनिया। वो शादी अपनी मर्जी से करना चाह रही थी उधर? शादी करना चाहती थी।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ अगर ਬਰਾਬਰ वो ज़मींदार आप लोग हैं, वो कमी है, तो इस बात की इजाज़त मिल जाती है कि किसी बंदे को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए? ये जायज़ है? जी मैं इस बात की इजाज़त नहीं देती, वरना जो तुम्हारी मर्जी करें। अच्छा चलें, आप ये बताएं, अब आपके जो शौहर हैं, बच्ची तो चली गई दुनिया से, रुखसत हो गई, अब अगर कानून की तरफ जाएं, हम कानून को सुने या कानून के ऊपर अमल करें तो सज़ा मिलती है, और कत्ल की सज़ा तो मौत ही है, फांसी है। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? एक तरफ वो बच्ची है जिसे आपने माँ की तरह पाला है, एक तरफ आपका शौहर है। बच्ची भी प्यारी है, शोर भी प्यारा है, ठीक है। ये भी मसला गैरत दे मामले च कीता ने, ते औखियां हो के कीता ने, जलील हो के कीता ने, सौखियां कोई ने कीता, रात दा आटा है देंदा नहीं। तो अब पूरे इलाके में बड़ी इज्जत हो गई है कि कत्ल कर दिया है, इज्जत बच गई है अब? जी इज्जत तो कोई नहीं बची, इज्जत तो वही है भी जेड़ी लाणियां ही ले गई है, पर तुसी गैरत के नाम पे कत्ल करने से इज्जत बच जाती है? नहीं जी नहीं बचती। तो आपके शौहर को इस चीज़ का एहसास नहीं था? एहसास सानू पता लगता ते होना क्यों सी। हमारी तरह तुम होते थे क्या करते? मैं आपकी जगह तो हूँ नहीं ना, अभी तो आप पे बात हो रही है ना, आपकी बात हो रही है। ऐसी बात है ना भाई, आप क्या करते? बच्ची है, मतलब घर से भाग के निकली है, मतलब कंट्रोल नहीं था, मतलब पाली हुई थी ना, माँ पे नहीं थी, आप असी भी माँ पे नाराती होना थे, ठीक है ना। तो बच्ची मतलब अपनी साड़ी मर्जी ते निकली, अगर साड़ी इजाजत तो बगैर एक साड़ी कौम का नहीं सी, एक आप मुसलमान हैं? हाँ मुसलमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हैं आप? जी। आखिरी नबी हैं वो? हाँ जी। वो ये कहते हैं किसी इंसान को किसी इंसान पर कोई बर्तरी नहीं है, यही कहते हैं ना वो? जी। और वो ये भी एक वाक़या है कि एक बच्ची ने उनके पास आके कहा एक औरत ने कि मेरी शादी मेरे वालिदैन ने मेरी मर्ज़ी के बगैर कर दी, मैं इस बंदे के साथ ही रहना चाहती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसका निकाह ख़त्म करवा दिया। पढ़ा हुआ ये वाक़या आपने, सुना हुआ है? जी नहीं, मैं तो ये हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, ठीक है, 1,24,000 में से आखिरी नबी हैं, उन्होंने ये काम किया था। इसलिए मुझे आप ये मिसालें मत दें, ठीक है। बहरहाल आपने कत्ल, आपके जो हैं रिश्तेदार हैं उन्होंने कर दिया, वो एक अलग वाक़या है। गैरत के नाम पर से कत्ल को जायज़ आप करार नहीं दे सकते। जब हमारे नबी ने एक मिसाल कायम कर दी है, फिर हम कौन होते हैं? जी जो तुम्हारी मर्जी करे तुसी वो कर सकते। मेरी मर्जी नहीं है, ये कानून की मर्जी है, अदालत ने फैसला करना हाँ है। जो कानून की मर्जी वो कर सकते हैं। ते बहरहाल साडी भी बच्ची सानू प्यारी सी, ते फिर असीं यही सोचने सानू इंसाफ मिलना चाहिए। वो इंसाफ क्या होना चाहिए इंसाफ? जिस इस तरह मैनू नहीं पता, करदे कोल पूछ लो असीं, तो फिर जिस टाइम नहीं, बच्ची आप बताएं ना, इंसाफ क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। अगर साडी गैरत सी ना, असीं उन्हां नूं मार दिता, ठीक है ना, वो भी साडी बच्ची सी, उहदे नाल इंसानू इंसाफ। आप ये इंसाफ कह रही हैं कि जो मुलजिम है उसे छोड़ देना चाहिए, ये कह रही हैं आप? जी नहीं, ये इस तरह फिर नहीं क्या मैं होना कह रही। चाहिए? फिर सानू इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ बच्चियों चाहिए? के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या इंसाफ होना चाहिए? आपको पता है इंसाफ क्या होना चाहिए? आप मुतालबा क्या कर रही हैं, बताएं ना, क्या इंसाफ होना चाहिए? जी इंसाफ यही होना चाहिए भी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? भी अगर बच्ची अपनी मर्जी से शादी करे, अगर ये भी नहीं होना चाहिए भी अपनी औकात तो वध के अपनी मतलब शादी करना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना। अगर साडी को कौम दा, साडी जात दा, साडे मुतालबा दा इंसान होवे, उन्हें सानू बता देना चाहिए भी मैं इस तरह ते अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, लव मैरिज करना चाहती हूँ। हाँ हम खुद लव मैरिज शादी उन्होंने ज़रूर कराएं, ठीक है ना। ठीक है, मसला जो है वो लव मैरिज का, पसंद की शादी का नहीं है, वो बात पीछे कहीं रह जाती है। मसला ये है कि अब एक जो सोच परवान चढ़ रही है कि अगर गैरत के नाम पर कत्ल किया है तो फिर वो जायज़ है कत्ल, ये एक बड़ी ख़तरनाक सोच है और ये रुझान अब बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं फ़ैसला करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना है, जो वाक़यात हो रहे हैं एज़ इट इज़, जूं के तूं आपको दिखाना है, और उसके बाद कानून का अपना एक रास्ता है। ज़ाहिर अदालत ने फ़ैसला करना है कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, और अदालत जो फ़ैसला करेगी वो हमें तस्लीम भी करना होगा। देखते हैं आगे मज़ीद इस केस में कौन कौन सी और परतें हैं, कौन कौन से और इंकशाफात हैं जो सामने आते हैं, आप तक सब कुछ पहुँचाएँगे। मुआ भटिया का इलाका, यहाँ जो कत्ल होने वाली बच्ची है, अब बड़ी मिली जुली आरा सामने आ रही हैं। गैरत के नाम पर ही हो, लेकिन कत्ल को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अहले इलाका हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, और ख़ुद जो इस केस के मुद्दई हैं वो भी यहाँ मेरे साथ होंगे, उनसे भी मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि इस केस में आखिर क्या निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी नज़ीर हुसैन। नज़ीर साहब, इस केस के मुद्दई आप हैं? जी सर। मामला क्या है? मामला सर जी, सारे बच्ची ने ज़्यादती की थी ने, बच्ची ने कत्ल कर छड़िया। आपके भाई ने मारा है? जी भाई ने मारा, लेकिन बड़ा जुल्म किया साढ़े नाल। ये जो वजह वो बताता है कि गैरत के नाम पर मैंने मार दिया, और जो कम बरादरी जो है, कमतर बरादरी में वो शादी करना चाहती थी, आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि सही था या गलत था? सर जी वो तो गल सही सी, लेकिन ये कि मारने वाले काम ये तो गलत किया ना,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। अच्छा, तो ये बताएं, अब चूँकि मुद्दई आप हैं, मुलजिम आपका भाई है, सगा भाई है, एक तरफ आपकी भतीजी है जो दुनिया से चली गई है, खानदान वाले तो कहते होंगे कि माफ़ कर दो, छोड़ दो, मामला जाने दो। ਸਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हैं ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, लेकिन ਅਸੀਂ ਮਾफ़ नहीं करना। पक्की बात है। पक्की बात है सज़ा जो उसको हुई, अगर कत्ल की हो तो फांसी होगी। जी सर, हो जाए, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। आपकी भाभी तो अब वो कहती होंगी कि छोड़ दो, मेरे शौहर को माफ़ कर दो। सर जी सब कहते रहन, लेकिन मैं माफ़ नहीं करना, माफ़ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपके नज़दीक ये जो कत्ल उसने किया है, गैरत के नाम पे मारा है, वो सही नहीं किया? सर जी सही किया होगा, लेकिन इस तरीका तो गलत है ना। उसको कितने बिठा भी तो हम लोग सकते थे ना, कई रिश्तेदारों में किसी में उसको बिठा सकते थे, लेकिन कत्ल कर देना ये तो कोई कानून नहीं है। अच्छा, ये जो आपके भाई हैं, उनका कोई बेटा भी है जिससे वो शादी करना चाहते थे इस बच्ची की, यानी भतीजी की? जी उसकी क्या उम्र है? तकरीबन 17-18 साल होगी। छोटा है वो बच्ची से? हाँ छोटा है। तो वो वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी? हाँ नहीं करना चाहते थे। क्या वजह है? मतलब लड़का काम नहीं सही करता, क्या है उसकी खराबी, क्या है उसके अंदर? कोई खराबी नहीं है कि लड़का काम सही करता है, बस वो ही कहनी मैं इतने नहीं निकाल शादी करनी। सही है, ठीक है। मुद्दई हैं जी इस केस के, और एक तरफ जो मुलजिम है वो इनका भाई है, मकतूला इनकी भतीजी है। ये कह रहे हैं सख्ती से कि मैं इस केस में माफ़ नहीं करूँगा। इलाके के नंबरदार मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि आखिर इन इलाकों में ऐसे वाक़यात के बढ़ने की वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम जी? मोहम्मद नवाज भट्टी जी। भट्टी साहब, ये बताएं, ये अब जो ये कत्ल हुआ है, एक शख्स ने अपनी भतीजी को मार दिया, ज़ाहिर इलाके में खौफ भी बड़ा होगा, इस तरह के वाक़यात यहाँ तवातर के साथ होते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल? ये अक्सर होते हैं, वैसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। ये इस कत्ल करने से जो इज़्ज़त है वो तो नहीं ना वापस आती। ये गलत किया है उन्होंने, बच्ची के साथ गलत किया है। आसान तरीके से बिठा कर उसको समझाते अपने ख़ानदान में कि नहीं उसकी शादी कर देते तो ये बेहतर था उस कत्ल करने से। अब चूँकि आप नंबरदार हैं, बहुत से लोग अपने मसाइल आपके पास लेकर आते होंगे, तो इस केस में भी, इस मामले में भी क्या मोहल्लेदारों ने, किसी ने आके कहा नहीं कि जी आए इनको समझाएं, एक बच्ची के साथ जो इनकी ज़िद चल रही है, कहीं खुदा ना खास्ता अंजाम ये ना हो कि कोई जान से जाए, कोई आपने समझाने की कोशिश नहीं की? इन्होंने मौका ही नहीं दिया था, किसी को समझाने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने खुद ही वो समझाते रहे, किसी को कानों कान खबर भी नहीं उन्होंने। ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे हो सकती है? ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे हो सकती है? रोकथाम तो ये ऐसी हो सकती है कि अपनी बच्चियों को कंट्रोल करें। माना जो आ गया इंटरनेट का, वो हर बच्ची के पास जो है ना मोबाइल, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ जी, ये माशरे को बिल्कुल इसने मोबाइल ने ख़त्म कर दिया है। पहले तो वक्तों में ऐसा होता था, कभी वो मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, तो ये जो दौर आ गया इंटरनेट का, इसमें बहुत ही बेहयाई फैल गई। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, जड़ को ख़त्म करना ज़रूरी है, यानी अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी, बच्चियों की तरबियत करना खुद वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है और वली की ज़िम्मेदारी होती है, पालने वाले की ज़िम्मेदारी होती है। अगर तरबियत अच्छी हो तो फिर इस बात के इम्कानात बहुत कम होते हैं कि कोई चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करे कोई भी बच्ची। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर किसी की तरबियत में कमी हो तो सज़ा उसको इस बात की मिलनी चाहिए कि उसने अच्छी तरबियत क्यों नहीं की। तुला इरम के वरसा से एक साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? शबीर। साहब, क्या लगते हैं इरम के आप? बाप। आप वालिद हैं उसके, तो क्या वाक़या क्या है, तफसील क्या है ये? वाक़या जी ये अपना बच्ची का रिश्ता किया है चाचे वाला, ठीक है, तो वो लड़का भी छोटा तो लड़की उधर जाती है, ठीक है। इस वजह तो वो फायर मारा। किसने फायर मारा? पिस्टल। किसने मारा? नमाज असल। वो क्या लगता है आपका? बेटा है। आपका बेटा है, उसने, आपके बेटे ने आपकी बेटी को कत्ल कर दिया, मार दिया? कीता है। वजह क्या थी, दोबारा बताएंगे? या जी बच्चे की प्याना शादी की है रिश्ते का, तो उधर बच्ची जाती ना, इस वजह। वो मानती नहीं थी, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी वो। हाँ जी। तो ये जो आपका बेटा है, उसके पास पिस्टल कहाँ से आया? पिस्तौल किधर से आया? अपना कोल ही है, लाइसेंस वाला? हाँ जी हाँ जी। तो आपको कोई उसने पहले कोई ऐसा लगा कि ऐसी हरकत कर सकता है, ये जान ले सकता है, मार सकता है, कत्ल कर सकता है, कोई आपको शक हुआ? गल्ला करता यार। करता था? हाँ जी, क्या हाँ जी, कहता था? आंदा मैं उधर कराना है, वो मंडी ना है बच्ची, साढ़े कोल ही मारे उसके। आपके सामने मारा? हाँ जी हाँ जी। रोका नहीं आपने? और पता ही नहीं लगन देता से बैठे है तो उस कान पे ले रख देते। कान पे रख के फायर किया? हाँ जी हाँ पट्टी पे रख के? हाँ जी फायर हाँ जी किया? कान पे। उसके बाद क्या हुआ? जी उस बाद पुलिस आई थे। पुलिस को खुद बुलाया आपने? हाँ जी आप खुद। आपने बुलाया? हाँ जी हाँ जी खुद। तो क्या उसके बाद आराम से गिरफ्तारी दे दी आपके बेटे हाँ ने? जी हाँ जी आप। क्या मुझे बताएं कि उसने कत्ल किया,
उससे पहले ये कितने अरसे से तनाज़ा चल रहा था रिश्ते का, आप चाहते थे जहाँ वो शादी कर ले, कितना अरसा हो गया था? 3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। क्यों नहीं शादी करना चाहती थी वो आपकी मर्जी से? कोई मतलब जी? अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी आपकी मर्जी से? वो जी बच्चा है एडा सारा, छोटा था उम्र में। छोटा तो बच्ची बड़ी है, बच्ची की उम्र कितनी? 16-17 साल की है। शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था इसका? ना। तो इतनी जल्दी आप उसकी शादी क्यों करना चाह रहे थे? अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। जी एंजल डेरा था तो बच्चियां मुबले लेना ही चाहिए ना। जल्दी शादी कर हाँ देनी जी, हाँ चाहिए। जी, बच्चियां दी भी करवा है तो बच्चियां दी। अब बात ये है जनाब कि आप एक तरफ आपकी बेटी जो है वो दुनिया से चली गई, एक तरफ आपका बेटा है जिस पर ये इल्ज़ाम है कत्ल का, भी ज़ाहिर है अभी तो मुलजिम है। तो एक तरफ बेटा एक तरफ बेटी है, क्या करेंगे, क्या चाहेंगे आपके? सज़ा मिले उसको या ना मिले? या ही दिवान कान फदाया क्या मैं नहीं। सज़ा दिलवाने के लिए पकड़वाया उसको। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। ये वालिद हैं मकतूला के और मुलजिम के भी। अब इनका तो यही अज़्म है, ये कहते हैं कि मैं माफ़ नहीं करूँगा अपने बेटे को, सज़ा दिलवा कर रहूँगा। आने वाला वक्त बता देगा कि कितना कायम रहते हैं अपने इस दावे पर, अपनी इस बात पर, क्योंकि हमने माजी में और माजी करीब में भी ऐसी कई मिसालें देखी हैं कि जब अगर ख़ानदान के अंदर ही कोई केस हो तो मुलजमान को ख़ानदान वाले माफ़ कर दिया करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान की जान गई है और उसकी उम्र अभी कम थी बच्ची की, लेकिन उसको कानून और उसके साथ साथ मज़हब भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो अगर एक जगह शादी नहीं करना चाह रही तो अपने वो वालिद के सामने ये बात रखे, अपने वली के सामने ये बात रखे। और ये खैर एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल एक इंसान की जान गई। अब देखते ही हैं कि ये अपनी बात पर कायम रहते हैं, उसको सज़ा दिलवाते हैं मुलजिम को जो कि उनका अपना बेटा है, या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो इससे पहले दोहराई जाती है। ऐसे 2 अफराद का 2 बच्चियों का कत्ल हुआ है और दोनों ही केसेस के मुलजमान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। इनसे बारी बारी बात करेंगे। एक मकतूला का चचा है और एक दूसरी बच्ची उसका भाई है, तो दोनों से बात करते हैं। नाम क्या तुम्हारा? शबीर अहमद। शबीर अहमद, भतीजी, उसको घर पाला हुआ था तुमने? या कितने अरसे से तुम्हारे पास थी? 10 साल। 10 साल से तुम्हारे पास। बेटी को कितना पाला होगा तुमने, इसका मतलब है? जी जी। तो फिर कत्ल क्यों किया उसे? वो जी गुनहगारी की थी। क्या चली गई थी, किसी के साथ चली गई थी? जी। मर्जी की शादी करना चाहती थी वो? हाँ जी। तो जिसके साथ वो गई थी अगर उसके साथ निकाह करवा देते तो इज्जत बच ना जाती? वो जी साडा बिलादरी दा नहीं सी। वो किस बरादरी का है? वो मोची सी। और तुम लोग क्या हो? असी पट्टी है। ज़िम्मेदार हो? जी तो बरादरी का ना होने की वजह से तुम्हें गुस्सा था इस बात का? जी हाँ। यानी मर्ज़ी से शादी करना कोई मसला नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर वो बरादरी में कर लेती अपनी मर्ज़ी से शादी, तुम मान जाते? जी हाँ। सिर्फ बरादरी से नीचे थी, मूची थी, इसलिए तुम नहीं चाहते थे कि वहाँ शादी हो। मारा कैसे उसको? बंदूक ना जी। बंदूक कहाँ से आई? अपने कोड़ी जी है। तुम्हारे पास थी? लाइसेंस है उसका? नहीं जी। बगैर लाइसेंस के तुमने असला रखा होता घर में? नहीं जी, वो पुराना साडा वालद फौत हो गया दो दूजे से। अच्छा, तुमने जिस दिन मारा उससे पहले क्या समझाने की कोशिश नहीं की उसको, बच्ची को? कि समझाया? जी बड़ी समझा। क्या कहती थी वो? आंधी नहीं मन। वो? कहती थी मैंने वहीं पे शादी करनी है। तुम अपने बेटे से शादी करना चाहते थे उसकी? नहीं जी, मेरे बेटे दे अगे हुई सी। हुई शादी? हाँ, उनदियां फूफियां दे बेटे। तुम्हारे अपने सगे भाई ने कहा है कि तुम अपने बेटे से शादी करना चाहते थे उसकी? जी। अच्छा चलो ये बताओ, अब कत्ल जो है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? जुर्म है जी, जो जुर्म है ना? वो अफसोस है कि मारा उसको या नहीं सही किया, ठीक किया क्या? हाँ जी, जो जी सजा होनी। नहीं वैसे मुझे बताओ, अब तो चली गई ना, वो मरने वाली चली गई, दुनिया से चली गई है, सही किया है या गलत किया है? कोई अब सोचते हो बैठ के, अंदर हवालात के अंदर बैठे होते हो, हथकड़ी लगी हुई है, सही किया था उसको मारा, कत्ल कर दिया या गलत किया? ऐसी जी आप अपने तो देने बिलारी के हिसाब है ठीक किया है। ठीक किया। जी। बंदा मार देना कोई गलत नहीं है, किसी इंसान की जान लेना गलत नहीं है। नहीं जी, जुर्म तो है ना। जुर्म है तो फिर ठीक किया, इसका मतलब है। अगर तुम्हारा बेटा अपनी मर्ज़ी से किसी ऐसी ख़ानदान की लड़की के साथ शादी करना चाहे जो मोची या कोई और ज़ात हो, इजाज़त दोगे उसको? नहीं जी। उसको भी मार दोगे? बेटे को मार दोगे, कत्ल कर दोगे? हाँ जी, इजाज़त नहीं ना हो सकती हैं? इजाज़त जी नहीं दे सकते। इजाज़त नहीं दे सकते तो मार दोगे, बेटे को भी मार दोगे? अगर वो अपनी मर्ज़ी करना चाहेगा, कम ज़ात के बंदे से, बच्ची से शादी करना चाहेगा, उसको भी मार दोगे, कत्ल कर दोगे या नहीं? हाँ या नहीं? जी। मार दोगे? नहीं। नहीं मारोगे? क्यों? वो बेटा इसलिए, मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग कानून है। गैरत के नाम पर भी कत्ल करना क्या हमारे मज़हब में, मुसलमान हो ना तुम, जी जी जायज़ है? नहीं जी, नहीं जायज़। तो जब एक चीज़ का अल्लाह ने, नबी ने मना कर दिया है, नबी ने कह दिया है कि हर इंसान को हक़ है, अगर वो बालिग़ है तो अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकता है, तो हम कौन होते हैं नबी के फरमान के आगे? कभी मौलवी साहब ने ये बात बताई नहीं तुम्हें? जी बताइए। फिर भी मार दिया। नहीं। तुम मोहल्ले के लोग ताने देते थे, बताते थे, कुछ कहते थे तुम्हें? जी जुर्म है जी। तुम्हारा भाई मुद्दई है इस केस में, वो तो कहता है कि मैंने सज़ा दिलवानी है अपने भाई को। जी। बात हुई तुम्हारी भाई से अपने? नहीं जी। नहीं हुई? क्या चाहोगे, माफ़ कर दे तुम्हें? नहीं जी।
माफ़ी मिलनी चाहिए नहीं? ये जी अल्लाह की ज़ात ही माफ़ी। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता इसकी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी इतना ही तुम्हारा सख्त दिल होता? उनका भी जी यही हाल यही हाल करना था। तुम आ गया ना? तुम्हारा नाम क्या? नवाज़िश अली। नवाज़िश, कितनी उम्र है तुम्हारी? तकरीबन 18-20 साल है। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? नहीं बना, यानी 18-19 का नहीं हुआ अभी। अपनी बहन को मारा, कत्ल किया, सगी बहन थी, तुम्हारे वालिद हैं? तो बाप जब सर पर है, तुम्हारे पास ये हक कैसे आ गया? तुम्हारी तो भी उम्र भी इतनी कम है, ये काम तो बाप का बनता है जो उसका वाली वारिस है। तुम कहाँ से बीच में से आके उसको कत्ल कर दिया? तुमने जान ले ली। सर बस गुस्से में आकर। गुस्से में आ गए? किसी ने रोका भी नहीं? नहीं सर जी, पता ही नहीं लगा। किसी को पता नहीं चलने दिया? तो ये हंसने वाली बात है, मुस्कुराने वाली बात है। तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन इंसान की तुमने जान ले ली, अपनी बहन को मार दिया, तुम मुस्कुरा रहे हो। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? ज़ाहिर है कत्ल किया तुमने, एक इंसान को मारा है, होना क्या चाहिए? कानून में क्या सज़ा होनी चाहिए इसकी? तुम बता दो। सर जी जो जुर्म है वो थी। सर जो जुर्म है वो तो। तुम्हारी शादी भी वहाँ वट्टा सट्टा होना था तुम लोगों का? किसके साथ? पतरेर के साथ, कज़न के साथ। कज़न के साथ, उसके भाई के साथ तुम्हारी बहन की शादी होनी थी। तो असल मसला तो ये था कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी वहाँ पे, ऐसा ही है? तो गैरत तो ना हुई ना, ये तो तुम्हें खुद जोर की शादी आई हुई थी, तुमने बस शादी करनी थी, तुम्हारी शादी में रुकावट आ गई, तुमने बहन को मार दिया। अब कर लो कि शादी जेल के अंदर, हवालात के अंदर शादी हो जाएगी? अब 2 मुल्ज़िमान हैं, 2 केसेस हैं, कहानी एक ही है, गैरत के नाम पर कत्ल। इस तरह के वाक़यात बहुत से हैं, मैं गिनने पे आऊँ तो मैंने खुद इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे बहुत से केसेस को उजागर किया, आप तक लाने की कोशिश की है, लेकिन अलमिया ये है कि इन केसेस में सज़ा नहीं होती। वजह यह है कि जैसे यहाँ पे भी एक केस में मुद्दई इस मुल्ज़िम का सगा भाई है, दूसरे केस में मुद्दई उस लड़के का सगा बाप है। इसकी उम्र भी कम है। हम ये भी पूछेंगे DPO साहब से कि इस केस में, और वकीला से भी पूछेंगे कि अगर उम्र कम हो तो जुर्म की शिद्दत में या उसकी सज़ा में किस हद तक कमी हो जाती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और हम ज़िम्मेदारान से ये भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं, केसेस होते हैं, तो ये ख़ानदान में मामला होने की वजह से ऐसे लोग बच निकलते हैं और बच्चियाँ इसी तरह गैर महफूज रहती हैं। ये गैरत बच्चियों के मामले में जागती है, बच्चों के मामले में, बेटों के मामले में ये सोई क्यों होती है? और अगर कोई बच्ची घर से बाहर निकल रही है तो गैरत का तकाजा तो यह कि इन्हें अपनी जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तरबियत में कोई कमी है तो कसूरवार वो पालने वाला होता है। लेकिन यहाँ आने की वजह सिर्फ ये 2 वाक़यात ही नहीं जिसमें 2 बच्चियों की जान गई, बल्कि जो माशरे में अदम बर्दाश्त का एक रवैया पनप रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस तरह के वाक़यात भी इजाफा इनमें होता जा रहा है। वजूहात क्या हैं, कैसे रोकथाम हो सकती है, और इस केस में ख़ास तौर पर ये 2 केसेस हैं, इनमें क्या शवाहिद हैं, उनकी रोशनी में क्या लगता है कि सज़ा हो पाएगी या नहीं। तमाम तर बातों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DPO हाफिज़ाबाद जनाब बिलाल इफ्तिखार साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब के वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। सर, ये हमारा तकरीबन 6 महीने में कुछ चौथा या 5वां केस है जो गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं। मैं पहले तो बहसियत मजमूई आपसे जानना चाहूँगा कि जो वाक़यात इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? तालीम की कमी, शऊर की कमी, या वैसे ही हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ गई है? बेसिकली जो मेरे ख़्याल में ये जो तरबियत की, जो हमारे घर में तरबियत की कमी है, ये मेन वजह है, ये गैरत के नाम पे कत्ल। जो अभी तक जो हमारा फरसुदा जो है हमारे ख़यालात हैं, इनकी बेसिस पे ये गैरत के नाम पे कत्ल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, मेरा ये ख्याल है। तो इनकी रोकथाम कैसे हो सकती है? ज़ाहिर है अब आप जैसे यंग अफसर्स को देख के हमें ये हौसला होता है कि आप लोग सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को डील करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ज़ाहिर आप जब यहाँ आएँ आपको मालूम हुआ होगा कि यहाँ पे जराइम की शरह क्या है, आपने कोई स्ट्रेटजी तरतीब दी है, हिकमत अमली की, जिसके ज़रिए आप ऐसे जराइम को रोक सकें या कम कर सकें? बहरहाल जी बिल्कुल, हम लोगों ने अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटजी अमल में लाई है। उसमें ये कि हम लोगों ने PPC की एक दफ़ा है 311, उसमें ये कि जिस वक़्त में हमें पता लगता है कि गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, उसमें हम 311 का दफ़ा इजाद करते हैं। अब ये 311 का दफ़ा क्या है? इसमें ये है कि ये कत्ल जो है गैरत के नाम पे ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिसमें उसके लवाहिकीन उस जो है कातिल उसको माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन जब 311 का दफ़ा इसमें इजाद कर दिया जाता है तो ये जो है जो ऑफेंस है ये अनकम्पाउंडेबल हो जाता है, और इसमें जो है माफ़ी की गुंजाइश नहीं रहती या किसास की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। तो इस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग इस जो है फिनोमेना को अभी कट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि 311 का इजाफा कर दिया गया, बड़ी अच्छी बात है ये। अब जैसे इस केस में एक मुल्ज़िम मकतूला का चचा है और एक मुल्ज़िम मकतूला का सगा भाई है। आप ये कह रहे हैं कि 311 यानी फसाद फिल अर्ज़ के इजाफे से
اگر ان کے خاندان والے معاف کر بھی دیتے ہیں تو بھی یہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. جو ہے قتل کا جو ہے اسلامی لاء کے اسلامک لاء کے تحت جو ہے قتل جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈیبل جو ہے اس میں معافی ہو سکتی ہے, کمپاؤنڈیبل افینس ہے. جب اس میں ہم 311 کا ایجاد کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی انکمپاؤنڈیبل ہو جاتا ہے اور اس میں معافی کی گنجائش نہیں رہتی. کورٹ اس کو ان کی آپس میں سیٹلمنٹ کے باوجود ان کو معاف نہیں کر سکتے. اچھا بلال صاحب, لوگوں کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا بھی آپ لوگوں کا ایک ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو علاقے کے معززین ہیں خاص طور پر ان کا اتنا اثر ہو, معاشرے کو شعور دینے کے لیے آپ لوگ ان کو یہ آپ ہدایت دیں گے تو آگے تک پہنچے گی, منتقل ہوگی. اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ بالکل آپ نے یہ بات بجا فرمائی. ہم لوگ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اٹیچ ہوں, لیکن اس میں مین جو مین ایکٹر ہے وہ میرے خیال میں کمیونٹی اٹ سیلف ہے کہ لیفٹ رائٹ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کوشش کریں کہ اس میٹر کو جلدی سے جلدی ریزالو کر سکیں. اگر میٹر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ ضرور جو ہے وہ پولیس کو انفارم کریں. عوام جو ہے وہ پولیس کی آئیز اینڈ ایئرز ہے. پولیس کو بہت سی چیزیں جو ہے ڈکیتی قتل پتہ لگ جاتے ہیں, لیکن اس طرح کی جو فیملی کے انٹرنل معاملات ہیں اس کا پولیس کو پتہ نہیں لگتا. لیکن سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اب یہ جو دونوں معاملات ہیں اس میں ایک کے پاس بندوق تھی, رائفل تھی بغیر لائسنس کے, دوسرے کے پاس بھی ایک پسٹل تھا, اس کے لائسنس تھا یا نہیں تھا یہ ہمیں علم نہیں ہے. یہاں علاقے کے میں نے لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے تو کہتے ہیں دشمن داری ہے, ہمارے تعلقات اس طرح خراب ہوتے ہیں, دشمنی ہوتی ہے تو ہمیں اسلحہ رکھنا پڑتا ہے. بغیر لائسنس کے اسلحہ وہ ویسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے اسلحے سے فائر پولیس کو نکال کے اگر میں عام لوگوں کی بات کروں تو بزدل آدمی ہی فائر کرتا ہے, دوسرے کی جان لیتا ہے. اسلحہ اگر آپ اس چیز میں ایک ایسا آپریشن کریں کہ جو بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے اس سے پاک کیا جائے علاقے کو, تب بھی مدد نہیں مل سکے گی بڑی حد تک. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. جو ہے یہاں پہ غیر لائسنسی اسلحہ جو ہے علاقوں میں موجود ہے, جس کے سلسلے میں گاہے بگاہے جو ہے سرچ آپریشنز بھی ہوتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کمیونٹی میں کیونکہ دشمنداری ہے, زمینوں کے یہاں پہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دشمنیاں ہیں, لوگ ویپن یہاں پہ رکھتے ہیں. تو یہ کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم تو آپریشن کرتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ جگہوں پہ ویپنز یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہم لوگ اس پہ انٹیلیجنس آپریشن کر کے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کم سے کم کیا جا سکے ان کو کیا جائے. سر آخری سوال, 2 کیسز ہیں. ایک میں تو چچا ہے مقتولہ کا, کافی ایج کا ہے, 50 سے اوپر اس کی عمر ہے, لیکن جو دوسرا کیس ہے اس میں بھائی ہے مقتولہ کا جس کی عمر کم ہے, ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا. تو کیا اس کی عمر کم ہونے سے سنگینی پر یا سزا میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے قانوناً؟ مطلب آپ اگر ایکسپلین کر سکیں تو. جی قانوناً جو بندہ جس کا مائنر جو ہوتا ہے وہ اس کے تحت اس کو بینیفٹ ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, لیکن اس صورت میں یہ 18 سال جو عمر ہے یہ میرے خیال میں یہ مائنر میں نہیں آتی, لاء کے تحت یہ مائنر میں نہیں آتی. اس کو کمپلیٹ سزا ہی دی جائے گی اگر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کی گئی تو. تھینک یو سو مچ سر. بلال افتخار صاحب DPO حافظ آباد ہمارے ساتھ موجود, اور ان 2 کیسز کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے, لیکن مجموعی طور پر جس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے ایسے جرائم کو, اس پر جو اسٹریٹجی بلال صاحب نے بتائی ہے, اگر اس پر عمل کر لیا جائے, لوگوں میں شعور دیا جائے, علاقے میں لوگوں کو یہ شعور ہو کہ تعلیم جو ہے وہ ان کے اپنے لیے ہوتی ہے, اور غیرت کے نام پر قتل سے آپ عزت بچا نہیں رہے ہوتے بلکہ اس سے عزت گھٹا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ شعور لوگوں میں آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بچیاں محفوظ رہ سکیں گی. اور پسند کی شادی کی خواہش رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اس خواہش پر کسی کی جان لینا بہرحال ایک جرم ہے. اصل غیرت کے نام پر قتل, اور وہ بھی خاص طور پر دیہی علاقوں میں, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آخر کب رکے گا, اور غیرت صرف بیٹیوں کے معاملے میں ہی, بہنوں کے معاملے میں ہی, ماں کے معاملے میں ہی کیوں جاگتی ہے, یہ غیرت بیٹوں کے معاملے میں سو کیوں جاتی ہے. بہرحال اسی پر بات کرنے کے لیے نوجوان مذہبی اسکالر جناب مفتی غلام حیدر ساقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ساقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غیرت کے نام پر قتل تو ویسے تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, لیکن غیرت کے نام کے قتل کو جس طرح سے جسٹیفائی خاص طور پر یہ لوگ کرتے ہیں, بچ جانے والے بھی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی, اس پروگرام میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نے جب گفتگو کی رشتہ داروں سے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نے ٹھیک کیا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا صدق اللہ العظیم. سما چینل کو سب سے پہلے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ کاوش ہے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر قتل کو ایک سر راہ گیر تصور کر لیا جاتا ہے, راہ چلتے چلتے بندے کا قتل. سب سے پہلی بات ہے قرآن مجید نے قتل کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا, فَجَزَاؤُهُ, قرآن کہتا ہے جانتے ہو اس کی جزا کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا خالدن فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب رہے گا. وغضب اللہ علیہ,
اور پھر ولعنہ اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور چوتھی اور آخری بات اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا اسے دردناک بڑا عذاب دیا جائے گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن مجید ہمیں یہ پیغام سخن دے رہا ہے کہ قتل کرنے والے لوگوں یاد رکھنا، قتل ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد۔ قتل اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ سابقہ قوموں کے احوال اور سابقہ قوموں کے معمولات جو تبدیل ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ان میں ایک وجہ قتل بھی تھی کہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور قتل کرتے تھے، اور ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکا برائی کرے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر لڑکی کی طرف سے کوئی ایسا قدم، کوئی ایسا پاؤں اٹھ جائے تو ہم لڑکی کو سرے عام قتل کر کے، اور نہ صرف دکھ کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ببانگ دوہل یہ کہتے پھرتے ہیں کہ لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا کیوں؟ اگر لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا تو لڑکے نے بھی اٹھایا۔ اگر مفتی صاحب، اس میں ایک چیز، ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے اور جوان ہونے پر اس کی شادی کرے۔ یہ سب کچھ ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی اولاد میں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی اگر کسی غلط راستے پر پڑتا ہے تو غیرت کا تقاضا تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ وہ خود اپنے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہماری تربیت میں کہاں کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اخلاقی اقدار ہیں اور ان کا اثر انداز ہونا معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار تو بہت دور چلی گئی ہیں، معاشرتی سوچیں تو بڑی دور چلی گئی ہیں۔ ایک گھر کے اندر جب ایک گھر کے اندر رہنے والا ایک والد جب اپنی بیوی کے ساتھ اخلاقی اقدار وابستہ نہیں کرے گا تو بچے، بیٹیاں، بیٹے وہاں سے کیا چیزیں تربیت حاصل کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس قتل کے اندر، حافظ آباد کی اس علاقے میں اور دنیا کے اندر جہاں پر بھی، اور عالم اسلام میں بھی جہاں پر بھی قتل ہو رہا ہے یا اس طرح کی برائیاں جنم پا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور ہمارے وہ والدین ہیں جو گھر میں ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ناظرین، ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام ضوابط موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں پہچان کر اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے اور ہم اس پر عمل درآمد بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جزا اور سزا کے عمل کو اس قدر مربوط اور اس قدر قابل عمل بنایا جائے کہ اگر کسی ایک شخص کو کسی جرم کی سزا ملے تو دوسرے عناصر، منفی عناصر اس سے عبرت حاصل کریں اور اس طرح لوگوں کی، انسانوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں۔ ذیشان ملک کو پروگرام ہم لوگ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔